Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for question minimum operations to make a uni-value grid from lead code weekly contest. Okay, so what we have to do in this question is we have a 2D grid of size m cross n and an integer x. Okay, in one operation what you can do is you can add x in any value or subtract x from any element in the grid. Fine. Now a uni-value grid is in which all the elements are equal. Return the minimum number of operations to make the grid value uni-value, to make the grid uni-value, or if it is impossible, return -1. Okay, so our simple operation is we have to make all the elements in this array equal. Okay, and in one operation what we can do is we can add plus x or we can subtract x. Okay, fine. Now हमने +1 and -1 वाले questions तो बहुत सारे किए, like we have an array, okay, and we have to make this array, all the elements in the array equal, and what we can do in one operation is we can add +1 or -1 in the array elements and find out minimum number of operations. Okay, so हमने ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने किए हैं. हम क्या करते हैं, हम सिंपली मिडिल एलिमेंट के इक्वल बना देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है. बट इन दिस देयर इज अ कंस्ट्रेंट दैट वी कैन इन वन ऑपरेशन वी कैन ओनली ऐड +x और सब्सट्रैक्ट x. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रेंट. नाउ if you see value of constraints, okay, so m cross n will be less than 10 raised 5, so total number of elements in 2D grid will be less than or equals to 10 raised 5. Fine. And maximum value in the grid will be maximum up to 10 raised 4, and value of x will be also 10 raised 4. okay, so somewhere you can say that कोई भी वैल्यू जो हम बनाने वाले हैं, ओके, एनी वैल्यू जो यूनिग्रिड की वैल्यू बनेगी, कोई भी वैल्यू यूनी वैल्यू ग्रिड की कोई भी वैल्यू जो पॉसिबल बनेगी, दैट विल बी एट द रेट मैक्सिमम 10 raised 4. ओके, क्योंकि ग्रिड की भी वैल्यू, जो ग्रिड ऑफ आई एंड जे की वैल्यू कितनी है, 10 raised 4 ही हो सकती है, एंड एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 10 raised 4 हो सकती है. ठीक है, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम सारे एलिमेंट्स में प्लस 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 ही करते जाओ, तो वो वाला केस नहीं बनेगा. तो फॉर नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्टेटमेंट दैट जो मैक्सिमम वैल्यू यूनिग्रिड की बन सकती है वो 10 raised 4 है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू थिंक द आंसर. मेरे पास अब कुछ ऑपरेशंस हैं कि मैं क्या कर लूँ, मैं सारी की सारी 2D ग्रिड को एक एरे में स्टोर कर लूँ या वेक्टर में स्टोर कर लूँ. ठीक है, नाउ आई हैव अ लीनियर एरे बिकॉज number of total elements 2D grid will be having will be less than 10 raised 5, so I can store them in a 1D array. No, so now I have a array and I have to make all the elements in this array equal by adding or subtracting x. Fine. So there can be a possibility that suppose this is my array and I am adding some k1x in this and I am subtracting some k2x from this, plus then again adding some k3x in this, and then again adding some k4x. k4, k1, k2, k3 are number of times I am adding x or subtracting x in the particular element. Okay, so you can suppose for every value like this. Okay, fine. Now suppose my destination value or target value इक्वल टू विच आई एम मेकिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. ठीक है, जिसके इक्वल मैं सारे एलिमेंट्स को बना रहा हूँ, मेरी जो टारगेट वैल्यू है वो क्या है, x. ठीक है, फाइन. तो दीज प्लस ऑपरेशंस विल बी इन ऑल दोज वैल्यूज विच आर लेस देन x. ये मानते हो? दिस इज द क्लियर स्टेटमेंट. सपोज द वैल्यू विच आई एम मेकिंग ऑल द एलिमेंट्स इक्वल. ठीक है, सपोज जो मेरी टारगेट वैल्यू है जिसके इक्वल मैं सारे एलिमेंट्स ऑफ एरे को बना रहा हूँ, दैट इज समवॉट x. सो ऑल द एलिमेंट्स लेस देन x will be having this plus x operation, that is we will be adding some multiple times x in that element. Okay, and all the elements in the
complete array all elements which are greater than x which are greater than suppose x, मैं x के इक्वल बना रहा हूँ ना टारगेट एलिमेंट, और यू कैन राइट x as target element, all the array ai elements which are greater than target element. There is a possibility and this is a must operation that we have to subtract some multiple of x from this. ठीक है, तो हम इन ai से क्या कर रहे होंगे, सम k टाइम्स ऑफ x सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे. ठीक है, फाइन. तो नाउ आई हैव टू सी दैट इफ आई कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन x और ग्रेटर देन x इन द कंप्लीट एरे, एंड दैट थिंग आई कैन डू यूजिंग बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, है ना. हम किसी भी एरे में, अगर वो एरे सॉर्टेड है ऑब्वियसली, तो हम उस एरे में क्या कर सकते हैं, सिंपली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू x, लेस देन x कितने में निकाल सकते हैं, o ऑफ log n में. ठीक है, तो o ऑफ log n में हमें ये पता चल जाएगा दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे, जिसमें हमें प्लस kx के ऑपरेशन लगाने हैं, कुछ टाइम्स, कुछ मल्टीपल टाइम्स x उनमें प्लस करना है. ओके, एंड बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हो जाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें कुछ मल्टीपल टाइम्स x हमें माइनस करना है. दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टारगेट एलिमेंट्स है, बड़े हैं. ओके फाइन, फॉर नाउ इतना हमें समझ में आ गया, एंड दैट थिंग वी कैन डू इन o ऑफ log n. फाइन, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट कि हमें कितने टोटल नंबर ऑफ x ऐड करने हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ x सब्सट्रैक्ट करने हैं. तो अब हमें ये चीज़ निकालनी है. सपोज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नाउ अब यहाँ से ध्यान से सुनना, टोटल एलिमेंट्स जिसमें मुझे प्लस x का ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सपोज दोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर c. ओके, एंड इन सारे c एलिमेंट्स का सम कितना है, सम ऑफ c एलिमेंट सपोज y है. ठीक है, अब आई विल बी सेइंग दैट y टोटल सम ऑफ c एलिमेंट्स प्लस उनमें मैं क्या करूंगा, दैट आई एम एडिंग k टाइम्स ऑफ x. सपोज these all values are equals to c, and I am adding k1x to this, k2x to this, k3x to this, k4x to this, k5x to this. ठीक है, so what I want to find out is I have to find out k1 plus k2 plus k3 plus k4 plus k5, है ना. These will be total number of operations which I have to find out. So I can write it as k cross x, where k will be total number of x which I have added in all these elements, that is k1 plus k2 plus k3 plus k4 plus k5. Okay, so that's why total sum of all the smaller elements plus suppose I have added kx in all these elements, fine, will be simply equals to c cross target, will be simply equals to c cross target, where target is the value जिसके इक्वल मैं इन सारी वैल्यूज को बना रहा हूँ और टोटल सी वैल्यूज को. ठीक है, तो मैं k को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिंपली k विल बी सिंपली इक्वल्स टू c क्रॉस टारगेट माइनस y बाई x. ओके, क्या k की वैल्यू ये हो जाएगी सिंपली, बट देयर इज अ कंस्ट्रेंट दैट c क्रॉस टारगेट माइनस y शुड बी डिविजिबल बाई x. अगर नॉट डिविजिबल बाई x है, ठीक है, देन आई विल सिंपली से दैट कि मैं x के मल्टीपल्स इन वैल्यूज़ में ऐड करके इन सारी वैल्यूज़ को इक्वल नहीं बना सकता टारगेट के. ठीक है, तो दिस विल बी माई केस ऑफ -1 आंसर, जब मैं टारगेट के इक्वल नहीं बना सकता. ठीक है, और अगर मैं टारगेट के इक्वल मल्टीपल ऑफ x को ऐड करके बना सकता हूँ, तो सिंपली दिस थिंग विल बी डिविजिबल बाय x. नाउ हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट k, that will be simply equals to c cross target minus total sum of c elements upon x. क्या मैं ये वाली वैल्यू o ऑफ 1 में कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिंपल सी चीज़ है. आई कैन स्टोर टोटल सम ऑफ फर्स्ट c elements in a prefix sum array. ओके, आई एम होपिंग दैट यू ऑलरेडी नो prefix sum array. तो मुझे फर्स्ट c elements का सम prefix sum array में मिल जाएगा. टारगेट की वैल्यू अभी मेरी डिसाइडेड नहीं है, मुझे c की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन टारगेट वैल्यू,
एंड मुझे x की वैल्यू पता है, तो अगर मेरा टारगेट की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो दिस थिंग आई कैन फाइंड आउट इन O ऑफ 1. ओके फाइन. तो जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ x जो मुझे ऐड करने हैं अपने इन C वैल्यूज़ में, वैसे मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ x जो मुझे इन वाली वैल्यूज से सब्सट्रैक्ट करने हैं इन O ऑफ 1. ओके, इजी सा ऑपरेशन है. नाउ टारगेट की वैल्यू मुझे डिसाइड करनी है, तो मैंने टारगेट की वैल्यू इनिशियली क्या बताई थी, मैक्सिमम टारगेट की वैल्यू क्या हो सकती है 10⁻⁴. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज, मेरे अभी तक के कितने ऑपरेशंस हो गए, O ऑफ 1 में क्या निकाल लिया था, टोटल नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ x. ठीक है. O ऑफ log n में मैं क्या निकाल रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू टारगेट. ठीक है. नाउ इफ आई इटरेट फ्रॉम 0 to 10⁻⁴, और मैंने बोला कि मैं सारे के सारे पॉसिबल टारगेट एक बार कंसीडर कर लूँ, दैट इज आई ब्रूट फोर्स इन ऑल दीज वैल्यूज, तो मेरी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 10⁻⁴ इंटू log n. मैं हर बार एक टारगेट की वैल्यू लूँगा, उस टारगेट के लिए मैं चेक कर लूँगा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस विच आई हैव टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू दिस टारगेट वैल्यू. मैं इसमें एक बार इटरेट करूँगा, तो टू मेक ऑल द वैल्यूज इक्वल्स टू आई, and I will update my answer as minimum of all these cases, that is from 0 to 10⁻⁴ तक मैं मिनिमम निकाल लूँगा जो भी ऑपरेशन है. ठीक है. तो कंप्लीट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है काइंड ऑफ. लेट मी शो यू द कोड. दिस इज कोड फॉर बाइनरी सर्च, दैट इज टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू की. ओके, यू कैन यूज लोअर बाउंड और अपर बाउंड हेयर ऑल्सो. ठीक है. देन आई केम हेयर, मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर में सारे के सारे एलिमेंट्स पुश बैक कर दिए, उनको सॉर्ट कर दिया. ठीक है. फिर मैंने देख लिया कि सारी वैल्यूज ऑलरेडी इक्वल तो नहीं है. अगर सारी वैल्यूज ऑलरेडी इक्वल है देन आई हैव टू सिंपली आउटपुट ये 0. अदरवाइज मैंने एक प्रीफिक्स सम एरे बनाई, प्रीफिक्स सम एरे में मैंने प्रीफिक्स सम स्टोर कर दिया एंड आंसर को इनिशियलाइज कर दिया मैक्स से. देन आई इटरेटेड इन ऑल द टारगेट वैल्यूज दैट इज फ्रॉम 0 to 10⁻⁴. मैंने C में क्या लिया, काउंट ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू करेंट टारगेट दैट इज I. ठीक है. फिर मैंने सिंपली चेक किया कि अगर C की वैल्यू 0 दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन टारगेट वैल्यू. देन मैंने अपने सिंपल ऑपरेशन चेक किया, टोटल सम, यहाँ पे तुम ऑल द ग्रेटर एलिमेंट्स के लिए और बड़े एलिमेंट्स के लिए इक्वेशन लिख सकते हो सिंपली. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. तो मैंने सिंपली क्या किया, टोटल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स माइनस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो मेरा टारगेट था, मतलब एक्स्ट्रा जो मुझे वैल्यू ऐड करनी है मल्टीपल ऑफ x की, अगर वो ऑब्वियसली x से डिविजिबल है तो आई विल सिंपली ऐड दैट थिंग इन माई xx. ओके. अदरवाइज मैंने एक फ्लैग ले लिया और फ्लैग को 1 कर दिया. एंड इफ़ मेरे पास कुछ छोटी वैल्यूज़ भी हैं टारगेट से, तो मैं सिंपली वाइस वर्सा सेम ऑपरेशन कर दूंगा. ऑल द मैं पहले एडिशन के कितने टाइम्स मुझे x का एडिशन करना है एंड कितने टाइम्स मुझे x का सब्सट्रैक्शन करना है. फाइनल आंसर, इफ़ मेरा फ्लैग 0 है एंड जो आंसर है वो मेरा पिछले आंसर से बड़ा है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, आंसर को अपडेट कर दूंगा. एंड एट द एंड आई कैन ऑल्सो क्रॉस चेक माई आंसर सिंपली, क्योंकि मेरे पास एक वो वैल्यू आ जाएगी जो मेरी फाइनल टारगेट है जिसने मुझे मिनिमम आंसर दिया है. तो क्या मेरा जो मिनिमम आंसर है वो मैं बना सकता हूँ, अगर नहीं बना सकता तो सिंपली आई विल रिटर्न -1, अदरवाइज आई विल रिटर्न 1. ओके. इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बट आई वॉज गेटिंग मल्टीपल रॉन्ग आंसर, इसलिए मैंने डीबग करने के लिए ये चीज़ एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.